Good morning, dear students. So, by now you studied about cell cycle and about the interface. So, before we start today's lecture, let's have a quick look on the what we have studied so far. And you have studied that what is cell cycle, that it is a process where we study all those changes which occur during cell growth and cell division. Cell cycle can also be divided into two parts. One is interphase and another is the M phase. In interphase, there are three phases: G1, S, and G2. I hope you all remember this, even though I am going to write for you G1, S, and G2 phase. One another phase that is called G0 phase, where there will be no growth, or you can say there will be no cell division. So these three phases, that means G1, S, and G2 phase, these three phases are known as the growth phase, because cell prepares itself for the division in the in these three phases, so that it can divide in the M phase. So we also talked about the G0 phase, that it is also known as, that means I am talking about this G0 phase. G0 phase is also known as the क्वीसेंट स्टेज. ठीक है, क्वाइसेंट स्टेज इसको भी बोलते हैं, कुछ क्वीसेंट बोलते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन आपको ठीक लगे. तो दैट इज़ कॉल्ड क्वाइसेंट स्टेज. इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इन दिस फेज सेल स्टॉप्स डिवाइडिंग and go to the resting phase. They may be differentiate with some other types of cells, but mostly they are in the resting phase. They don't participate into the cell division until the body of the organism does not requires and ask it to divide. Otherwise ये rest phase में ही रहते हैं. So now we come to the our next topic, that is called mitotic division. So mitotic division we have to study today. And before I start to explain what is mitotic divisions and what are their various phases, there are few more things you must have to know. That first thing is that what is the duration of the cell division. So mostly which is given in your NCERT book also, that typical eukaryotic cell, human cell, I am talking about human cell, and in the culture medium, not in the body cell, in the culture medium, that means in the laboratory condition, usually they divide after every 24 hours. But it can be very according to the, as you all know that biology is full of exceptions. तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक रूल आप सब पे लगाओगे. तो ये डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की सेल है, उस पर डिपेंड करता है. एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सेल टाइप, कौन सी सेल है, एंड ऑल्सो सम इन सम एक्सटेंट यू कैन से टेम्परेचर ऑल्सो. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ईस्ट सेल होती है ना, ईस्ट आप सब जानते हो. तो ईस्ट सेल डिवाइड अबाउट 90 मिनट्स. तो वो 90 मिनट्स लेती है पूरा सब कंप्लीट होने में, सेल साइकिल कंप्लीट होने में. तो दो एग्जांपल्स ही आपके NCERT में दिए हुए हैं, तो मैंने आपको दो बोला सो दैट यू कैन रिमेंबर देम, कि 90 मिनट्स में ईस्ट सेल एंड 24 आवर्स में ह्यूमन सेल जो है वो डिवाइड होती है. तो दिस इज़ द वन थिंग दैट फेजेस ऑफ द सेल साइकिल, अगर आप उनको कहें कि कब वो डिवाइड होती है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट समबडी आस्क यू कि वेयर डिड दिस अकर, ये कहाँ होती, वेयर डज द माइटोसिस अकर्स. तो आपको उसमें आपको याद रखना है, बिकॉज दीज आर द वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग जो मोस्टली आप बच्चे लोग भूल जाते हो. माइटोसिस अकर्स बोथ इन सोमैटिक सेल and as well as germ cells. Germ cell and somatic cell I have told you earlier, but again I am repeating it because this stage, that means 11th class, is the foundation of your further knowledge. तो आप उन चीज़ों को strong करके रखो. बार बार नहीं मैं आपको बता पाऊँगी हर बार, तो आपको बार बार अभी शुरू में बता रही हूँ, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट. लाइक सोमैटिक सेल जो होते हैं वो आपकी बॉडी के कोई भी सेल्स हो सकते हैं एक्सेप्ट द जेनेटिक सेल्स, दैट मीन्स गोनेट्स के सेल्स. तो ग्रोथ फेज़ में जितनी भी सेल्स हैं दे ऑल आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स, हाथ की, पैर की, ठीक है, ये सारी. एज वेल एज जो जर्म सेल्स हैं दे आर फाउंड इन द गोनेट्स. गोनेट्स मीन्स टेस्टिस एंड ओवरी, ओवरी इन द फीमेल, टेस्टिस इन द मेल्स. तो वहाँ पर पाए जाते हैं. तो दैट मीन्स मिटोसिस अकर्स इन बोथ द प्लेसेस. अब ग्रोथ फेज़ में तो ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कट लग गया, कुछ चोट लग गई, तो वो सेल्स वहाँ पर मल्टीप्लाई करके उसको फिल कर देते हैं, कवर कर देते हैं. बट इन द केस ऑफ गोनेट्स, तो अभी आप जब रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे इन द 12th क्लास, then you get to know that gonads, that means cells of testis and ovaries, they also enter into the multiplicative phase.
during the gametogenesis. When gametes form, that means then sperm form and then ovum form. At that time multiplicative phase भी होती है. That means वहाँ पर simple multiplication होता है और कुछ नहीं होता, सिर्फ सेल डिवाइड्स करके अपना नंबर इंक्रीज़ करती हैं. तो वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ती है. एंड इन प्लांट्स तो आप जानते ही हो कि मियोसिस एवरी वेयर, जहाँ कहीं भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं. मेरिस्टेमेटिक सेल्स, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू, मेरिस्टेमेटिक सेल्स मीन्स द सेल्स विच हैव द डिवाइडिंग कैपेसिटी. ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, उन सेल्स को बोलते हैं. एंड बेसिकली कहाँ पाई जाएंगी? रूट एपेक्स पर या फिर शूट एपेक्स पर ना, टिप पर बिल्कुल पाई जाएंगी. रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स क्या होता है? जैसे ये सपोज प्लांट हुआ ना, तो दिस इज़ शूट एपेक्स माने ऊपर का पार्ट, और अगर ये रूट्स हैं आपकी तो दिस इज़ कॉल्ड रूट एपेक्स. तो यहाँ पर ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम होती है, बिकॉज दीज आर द ग्रोथ पॉइंट्स. यहीं से प्लांट लंबाई में बढ़ता है. तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है. दैट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड. एंड द कैम्बियल सेल्स ऑल्सो. कैम्बियल सेल्स भी आप अभी आगे पढ़ोगे. कैम्बियम का नाम यू हैव हर्ड आई थिंक. तो कैम्बियम सेल्स आपने पढ़ी हैं. तो कोई भी प्लांट सपोज इट इज़ थिन लाइक दैट, पर जब ये चौड़ाई में बढ़ता है, जब एज पास ऑन होती है, तो देयर आर सम सेल्स दैट इज़ नोन एज कैम्बियम सेल्स. तो वो कैम्बियम सेल के डिवाइड होने से इसकी जो गर्थ है, इसका जो सर्कमफेरेंस है, इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती है. तो इसलिए कैम्बियल सेल्स में भी एक्टिविटी होती है, बिकॉज व्हेन दे डिवाइड ओनली देन दे कैन इंक्रीज देयर मास ना. तो इसलिए वहाँ पर भी डिवाइड होना है. इसके अलावा आपकी स्किन में एंड बोन मैरो में भी पाई जाती हैं. स्किन में कैसे? आप रोज़ ही देखते हो स्किन को, आप रब करो तो स्किन हमारी ऊपर से वॉर्न ऑफ होती है, या कुछ टाइम के बाद अपने आप वो स्किन रिमूव होती जाती है. तो हमारी स्किन सेल्स में भी पाई जाती है, एज वेल एज़ हमारी बोन मैरो सेल्स में भी पाई जाती हैं, जहाँ कॉन्टीन्यूसली सेल्स हमारी बनती रहती हैं, चाहे वो ब्लड सेल्स हों या अदर सेल्स हों, वो बनती रहती हैं. तो दैट मीन्स जो माइटोसिस डिवीज़न है, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो के बनने पर, क्योंकि बहुत सारी सेल्स चाहिए होती हैं. तो माइटोसिस अकर्स इन बोथ मीन्स इन हैप्लॉइड सेल्स, बेसिकली इन द लोअर प्लांट्स. और हनी बी का एग्जांपल भी आप पढ़ोगे 12th में. दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दिस एग्जांपल. हनी बीज़ में भी, हनी बीज़ में जो ड्रोन्स होते हैं उनमें ये वाला होता है सेल डिवीज़न, क्योंकि 12th में आपने पढ़ना है, तो आपको याद रहे, अच्छी बात है ना. एंड डिप्लॉयड सेल्स में पाई जाती हैं. तो डिप्लॉयड सेल्स हायर प्लांट्स में, और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, हम सब जो हैं डिप्लॉयड, हम सब में पाई जाती है. तो यू कैन ईजिली से कि दिस इज़ फाउंड इन सोमेटिक सेल, दीज आर फाउंड इन द जर्मिनल सेल, दीज आर फाउंड इन द हैप्लॉयड सेल, दीज आर फाउंड इन द डिप्लॉयड सेल. तो सभी में पाई जाती हैं एट वेरियस स्टेजेस ऑफ टाइम. तो इट विल बी ईजी फॉर यू अगर आप इसको नटशेल में कहना चाहते हो तो. After then, now we come to the direct process of the cell division, and this process of the cell division, as I have drawn here a flow chart kind of thing, so I am just going to explain you. Beta, just pay attention that what I am going to explain you, because ये नहीं तो आपको बहुत ट्रबल करेगा, समझने में दिक्कत होगी आपको, because you are going to study a complete new thing. एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स में आपको ये इवन 12th तक ये आपको जरूरत पड़ेगा. चैप्टर आपको प्रैक्टिकल्स में भी है 12th में आपके, तो डोंट इग्नोर इट. ठीक है, और तो उसको आप ध्यान से देखोगे. सबसे पहले यहाँ पर मैंने मिटोसिस लिख रखा है. मिटोसिस सेल डिवीजन. एवरी सेल डिवीजन हैज़ टू पार्ट्स, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. बाय नाउ यू अंडरस्टैंड. कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. तो फर्स्ट वी गो फॉर द कैरियोकाइनेसिस. एंड कैरियोकाइनेसिस इज डिवाइडेड इनटू, उस दिन मैंने आपको बोला था, फिर बीच में मैंने नहीं बताई वो चीज़, कि यू जस्ट लर्न वन वर्ड, PMAT. व्हाट इज़ PMAT मीन्स? PMAT means prophase, metaphase, anaphase and telophase. These are the 4 stages. So you can say that karyokinesis में जो ये स्टेजेस होती हैं, ये 4 स्टेजेस होती हैं, प्रो, मेटा, एना, टीलो. तो वन बाय वन वी हैव टू स्टडी अबाउट ऑल दीज फेजेस. और इससे आपको ये भी पता चलेगा फेजेस क्यों हैं, कि क्रोमोसोम्स में या डिवीजन के समय क्या क्या चेंजेस आते हैं, बिकॉज चेंजेस आर सो लॉन्ग. तो उनको आप एकदम से नहीं पढ़ सकते. जैसे आप एग्जांपल लो, जैसे सपोज आप स्कूल आते हो, तो जब आप स्कूल आते हो तो आपका पूरा टाइम पीरियड बहुत बड़ा है. टाइम पीरियड आप सपोज 7:30 7:45 आ गए, एंड देन यू बैक टू द योर होम एट 2 o'clock और 2:30 तक आप पहुंचते हो. तो 2 o'clock तक जो भी आप पढ़ते हो, सपोज़ अगर आपके पीरियड्स में डिवाइड ना हो आपके क्लासेस, तो अगर आपकी मदर आपसे पूछेंगे घर जाके कि हाँ भाई आज तुमने क्या पढ़ा या कौन से टीचर कब आए, तो यू डोंट हैव एनी आइडिया एग्जैक्ट. आप कहोगे पता नहीं कितने बजे कौन सी क्लास लगी थी. अभी तो पहले बायो वाले मैडम आए थे, फिर बीच में सडनली फिज़िकल्स वाले सर आ गए थे, फिर बीच में मैथ्स के सर भी आ गए थे,
टाइम का भी कुछ पता नहीं है, कभी कोई आ जाता है, दैट मीन्स यू कांट गिव एनी एग्जैक्ट आइडिया टू योर मदर कि कब क्या हो रहा था, एंड यू विल बी ऑल्सो कन्फ्यूज्ड कि आपको तो पता ही नहीं कौन सा टीचर कब आने वाला है, तो आप प्रिपरेशन क्या करके रखोगे। तो इसलिए और आप परेशान भी हो जाओगे। सपोज़ मेरा मन किया, मैं 2 घंटे तक की क्लास लगा ली, बोलती रही मैं, आप तो बिल्कुल परेशानी हो जाओगे ना कि 2 घंटे तक पढ़ाई जा रही है। उसके बाद कोई टीचर आया, वो 15 मिनट में ही काम करके चलता बना, तो आपको लगेगा लो जी इन्होंने तो कुछ कराया ही नहीं है। तो बहुत ही क्योटिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो पर अगर हमने डिवाइड किया हुआ है अपने स्कूल के टाइम टेबल को, तो आपको पता है कि 40 मिनट्स और 45 मिनट्स का 1 पीरियड है, और ये ऐसा टाइम टेबल है। तो अभी बायो लगेगा, फिर फिज़िक्स लगेगी, फिर केमिस्ट्री लगेगी, फिर फिज़िकल लगेगा, फिर फाइन आर्ट्स लगेगा। तो यू आर वेरी मच क्लियर इन योर माइंड, और आप घर जाके मम्मी को एग्जैक्टली बता सकते हो कि मम्मी अगर मुझे बायो के टीचर से आपको मिलना है तो आप 9 to 9:40 के बीच में आ जाना, उनका क्लास चल रहा होता है ना। तो दैट मीन्स कि दीज थिंग्स आर वेरी मच इन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो इन द सेम वे कि जब आप अगर सेल डिवीजन इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस और क्रोमोसोम कब किस स्टेज में है आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो आप कैसे उसको स्टडी करोगे। तो इसलिए उसको आपके कंफर्ट के लिए, सो दैट स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स क्लियरली, इसको हमने फेजेस में बांटा है। एक्चुअली हो तो सारा क्रोमोसोम्स का डिवीजन ही रहा है, लेकिन उनको स्टेप वाइज हम बांट लेते हैं, तो इट विल बिकम ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द वेरियस एंड ग्रेजुअल चेंजेस इन द सेल न्यूक्लियस, सॉरी। सो एंड नाउ कम टू द प्रोफेज। प्रोफेज की एक अपनी और स्टोरी हो गई कि जो ये प्रोफेज है, इसको भी और अच्छे से समझने के लिए, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। तो अब लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है, लंबा काम चल रहा है, तो यू डिवाइडेड इनटू द सब फेजेस। तो हमने इसको सब फेज में डिवाइड किया, अर्ली, मिड एंड लेट। ठीक है, तो आप बोलोगे अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज, बट आई हैव जस्ट सम अप फॉर यू कि आपको ये इतना ट्रबलसम ना लगे कि कितना कुछ पढ़ना है, तो मैंने इसको शॉर्ट में किया। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं किसके बारे में, मिटोसिस के बारे में भी, कि ये क्या है। तो जो मिटोसिस सेल डिवीजन है, बेसिकली इट इज़ नोन एज सोमैटिक सेल डिवीजन और इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इसको सोमैटिक की स्पेलिंग तो आप सबको आती है, दिस इज़ कॉल्ड सोमैटिक। एंड नेक्स्ट इज़ द इक्वेशनल सेल डिवीजन, यहाँ से लिखती हूँ EQUATI, इक्वेशनल सेल डिवीजन। एंड वाई वी कॉल द इक्वेशनल सेल डिवीजन, because chromosome number will be constant in both parents as well as the daughter cell। ठीक है, जैसे सपोज कर लो पेरेंट्स में 2 सेल हैं, तो डॉटर सेल्स में भी दोनों में 2 एन नंबर ही होगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो दैट मीन्स दे आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, सिमिलर है ना। जैसे अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, दिस इज़ अ पेरेंट सेल and it is divided into 2 cells, so it has also 2n number, it has also 2n number, तो both the daughter cells have the 2n number। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल, मीन्स बराबर। ठीक है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करती। तो क्रोमोसोम नंबर विल बी कांस्टेंट इन बोथ पेरेंट्स एज वेल एज डॉटर सेल्स, एंड डॉटर सेल्स ऑल्सो आर क्वान्टिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली सिमिलर इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये बात भी आप तो बोल सकते हो साथ के साथ ना, मैं अब आपको बोल रही हूँ थोड़ा इंग्लिश में, आप प्रोफिशिएंसी लाएंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ कि जब एक ही उससे बन रहे हैं, सपोज अगेन आई एम राइटिंग, ये पेरेंट सेल है 2n है, डॉटर सेल बनी 2n एंड 2n, तो व्हाट यू इफ़ यू हैव टू एक्सप्लेन इट, इसको आप कैसे कहोगे, आप ऐसे ही बोलोगे ना कि डॉटर सेल्स आर क्वालिटेटिवली एंड एज वेल एज क्वान्टिटेटिवली सिमिलर इन द जेनेटिक मटेरियल टू देयर पेरेंट सेल, क्योंकि जो जीन्स जिस तरह के होंगे, जेनेटिक मटेरियल जैसा होगा, वैसे ही तो पेरेंट सेल बनेंगी ना। तो वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसी होती हैं, बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं। तो इसलिए उनको हम बोलते हैं कि क्वालिटेटिवली एंड क्वान्टिटेटिवली अपने पेरेंट्स की जैसे वो होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, ये चीज़ तो हो गई आपकी। अब हम आ जाएंगे प्रोफेज़ के बारे में, जो हमें थोड़ा सा पढ़ना है कि प्रोफेज़ स्टेजेस क्या होती हैं। तो तीनों स्टेजेस को कंबाइन करके मैं आपको बताऊंगी, चाहे वो प्रो हो, मिड हो या लेट हो, क्योंकि वो सारा फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन एंड मेड अप ऑफ 3 फेजेस, अर्ली, मिड एंड लेट। तो व्हाट विल हैपन इन इट, तो अब ये मैं हटा देती हूँ इधर से, तो आपको क्लियर दिखेगा। दीज आर द 3 डायग्राम्स आई हैव ड्रॉन फॉर यू, अदरवाइज़ आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे। तो सेंट्रियोल्स जो हैं यहाँ पर, दे फॉर्म्स एस्ट्रल रेज, यहाँ पर ये मैंने छोटे छोटे बनाए हुए हैं, ये सेंट्रियोल है और एक यहाँ पर सेंट्रियोल है। सो जो सेंट्रियोल्स हैं ये आपके बनने लग जाते हैं और एस्ट्रल रेज फॉर्मेशन करते हैं। अब सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो ना, अब सेल डिवीजन आप तो याद है, तो ऐसे ऐसे करके ये स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर जो आपको दिख नहीं रहे ना अभी, जो मैंने आपको पॉइंट आउट किया है कि मैंने छोटा सा ड्रॉ किए हुए हैं यहाँ पर,
ये 1 2 यहाँ पर ये मैंने बनाए हुए हैं सेंट्रियोल। तो एग्जैक्टली कैसे दिख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे सेंट्रियोल्स हो गए ना, पूरा सेंट्रोसोम। तो ये क्या बनाएंगे बाद में, दे फॉर्म्स द एस्ट्रल रेस, जिससे कि क्रोमोसोम्स अलग डायरेक्शन में जाते हैं। तो सेंट्रियोल्स बनते हैं, एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद में क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस्ड होते हैं। व्हाट आर क्रोमेटिन, ये भी अब आपको पता है कि सपोज दिस इज़ द न्यूक्लियस, और यहाँ पर ये ऐसे पड़े हुए क्या होते हैं, क्रोमेटिन्स होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड क्रोमेटिन। तो ये क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होने लगते हैं। कंडेंस मीन्स थोड़ा से थिक है ना, ऐसे ऐसे करके वो शेप लेने लग जाते हैं इस तरह से, है ना, ये शेप आ जाता है इनका। तो इस तरीके से कंडेंस होने लग जाते हैं। एंड 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स भी इनमें अपीयर होने लग जाती हैं, लाइक दिस। ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए ना, अब ये दो दिखने लगे, अभी तो आपको ऐसे ऐसे दिख रहे थे। तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स स्टार्ट अपीयरिंग, क्रोमोसोम्स मूविंग अवे टू द एस्टर्स। अब ये अलग अलग देखिए, यहाँ पर आप डायग्राम में देखोगे, यहाँ पर ये अलग अलग जाने लग गए ना लेट प्रोफेज में। तो एस्टर रेस के थ्रू ये जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। एंड जस्ट सेल ऑर्गेनिल्स विच आर गोइंग टू डिसअपियर, क्योंकि अब तो सेल डिवीजन होने जा रहा है, तो इनका जो सेल ऑर्गेनिल्स हैं इनकी तो जरूरत ही नहीं है कुछ भी, तो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। गोल्जी बॉडी डिसअपियर हो जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो जाएगी, एंड न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाएगा। तो ऑल दीज न्यूट्रल सेल ऑर्गेनिल्स विल बी डिसअपियरिंग, वो भी सब डिसअपियर हो जाएंगे, और स्पिंडल फॉर्मेशन यानी कि स्पिंडल बन जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको प्रोफेज में क्या बोलना है, इन शॉर्ट आपको ये बोलना है कि सेंट्रियोल्स फॉर्म्स एस्ट्रल रेज, chromosome start condense, and it chromosomes looks like 2 sister chromatids having 2 sister chromatids, and disappearance of Golgi body, endoplasmic reticulum, nuclear membrane, nucleolus, सारे देखो कहीं भी नहीं दिख रहे आपको। अदरवाइज तो सेल ऐसे होती और यहाँ पर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती और ये न्यूक्लियस होता। पर आप देखो ग्रेजुअली यहाँ पर मैंने डॉटेड दिखाया है कि ये सारे फिनिश हो जाते हैं, और ये छोटे छोटे से एस्ट्रल रेज बन गए हैं यहाँ पर, और डॉट डॉट, और ये अपोजिट डायरेक्शन में इनको ले जा रहे हैं। तो दिस इज़ द प्रोफेज, दैट मीन्स इट इज़ बिगनिंग। तो बिगनिंग हो रही है, शुरुआत हो रही है, तो सारे सेल ऑर्गेनिल्स डिसअपियर हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज़ कॉल्ड मेटाफेज स्टेज। दिस इज़ द मेटाफेज स्टेज। व्हाट हैपेंड इन द मेटाफेज स्टेज, आप ये याद रखो कि मेटाफेज का मतलब होता है मिडिल, है ना, और मिडिल का मतलब क्या होता है, बीच में, है ना। मिडिल, एम फॉर मिडिल, एम फॉर आप सेंटर में याद रख सकते हो इसको। तो इसको भी हम कभी कभी 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस। स्टेज तो एक ही है, तो वी कॉल देम प्रो मेटाफेज एंड वी कॉल देम मेटाफेज। बट इसमें यू कैन क्लियरली सी दैट दीज आर द सेंट्रियोल्स, 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 है ना। और ये क्या कर रहे हैं, एस्टर रेज फॉर्म कर रहे हैं। एस्टर रेज वही मैंने बताई, ऐसे ऐसे बने हुए हैं ना सारे रेडिएटिंग फाइबर्स की तरह, ये बने हुए हैं, एस्टर रेज बने हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है, बिकॉज क्रोमोसोम्स आर maximally you can say condensed, they are in the condensed form, and morphologically also they appear very clear. That means if you want to study the structure of the chromosome, you have to study in this phase also, that means in metaphase stage, because you can see them very clearly. तो ऑब्वियस है आपको स्ट्रक्चर भी अच्छा दिखेगा। सो क्रोमोसोम अरेंज्ड ऑन द इक्वेटर प्लेट, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। ये जो सेंटर वाली चीज़ हो गई ना, इसको कहते हैं इक्वेटर। देखो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो, इक्वेटर प्लेट पे ये अरेंज कर लेते हैं अपने आप को, मतलब मिडिल प्लेट पे आ जाते हैं। यू कॉल दैम मिडिल प्लेट ऑल्सो। सो क्रोमोसोम अरेंज्ड एट इक्वेटर इन द मेटाफेज प्लेट। दिस इज मेटाफेज प्लेट इज़ नॉट लाइक अ प्लेट की कोई चीज़ आपको दिखेगी, दिस इज़ लाइक इमेजनरी थिंग। तो ये यहाँ पर इसने अपने आप को क्या कर लिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने अरेंज कर लिया है। एंड सेंट्रोमियर ज्वाइंड एट स्पेंडल फाइबर, जो सेंट्रोमियर होगा, आई होप यू रिमेंबर व्हाट आर द सेंट्रोमियर, दीज आर द सेंट्रोमियर। तो इनसे जो है वो क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर हमारे अटैच हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्पिंडल फाइबर ही इनको अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करने के काम करते हैं। तो यहाँ पर spindle fibers are formed, or you can say they are joined with the centrosome, and arms of the chromosome directed towards the poles. You can see here that the arms of the chromosome is directed towards the pole. These are the poles na, so they are directed on this direction, so they are directed on the poles. So very few events in this metaphase. I am going again to repeat. Chromosomes are maximally condensed, they are morphologically seen very much clear, and they are arranged in the metaphase plate. Chromosomes joined by the spindle fiber, and arms are directed towards the opposite poles. So this is all about the metaphase. Now come to the next phase, which follows the metaphase, that is called anaphase. Anaphase stage is also very similar to the, you can say,
मेटाफेज स्टेज, क्योंकि आपको दिखने में तो वो वैसी लग रही है दूर से, बट द इवेंट्स हैं दे आर डिफरेंट बिकॉज इट इज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन. जैसे मेटाफेज और मैंने ना प्रोफेज की बात की, तो प्रोफेज वॉज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन. सिमिलरली यू कैन से अनलाइक दिस इज़ द एनाफेज इज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, 2-3 मिनट्स की हार्डली होती है. एंड सेंटोमियर स्प्लिट्स इनटू 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स. अभी आप देखो यहाँ पर ये 4 आर्म्स आपको दिख रही थी ना, ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे दिख रहा था ना ये आपको. नाउ यू सी इन दिस फेज, एनाफेज में व्हाट यू कैन सी दैट ओनली 2 आर्म्स, वन इज़ दिस एंड ये अलग. ठीक है ना, ये ऐसे आपको नज़र आने लग गया, आ रहा है ना नज़र. तो दैट मीन्स सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आर फॉर्म्ड एंड क्रोमेटिड मूव्स टू द ऑपोजिट पोल्स. और अब आप देख रहे हो ये अपोजिट पोल में जा रहे हैं. इफ़ आई टेक डिफरेंट कलर एंड दे गो टू द ऑपोजिट पोल. अंडरस्टैंड इट? आई थिंक इट इज़ वेरी ईजी इफ़ यू फॉलो मी स्टेप बाय स्टेप. तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा कि हाउ क्रोमोसोम्स आर डिवाइड, बिकॉज दे हैव टू गो इनटू 2 डिफरेंट डॉटर सेल्स, तो दे हैव टू डिवाइड. तो यहाँ पर अब आपका फिनिश होता है एनाफेज, एंड आफ्टर द एनाफेज वी कम टू द अनदर फेज, और यू कैन से लास्ट फेज, दैट इज़ कॉल्ड टीलोफेज. सो नाउ वी मूव ऑन टू द टीलोफेज. तो अभी हम टीलोफेज के बारे में पढ़ेंगे कि टीलोफेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं. आई जस्ट फाइंड द डायग्राम, दिस इज़ द डायग्राम टीलोफेज. तो टीलोफेज स्टेज जो है यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैंने आपको शो की हुई है. एंड व्हाट हैपन इन दिस स्टेज, नेचुरली दिस इज़ द लास्ट स्टेज. तो दैट मीन्स कि नाउ सेल इज़ स्टार्ट फॉर्मिंग द 2 डॉटर सेल्स, है ना. अब सारा काम इवेंट तो ख़त्म होने वाला है. तो ये सारा ऑपोजिट है प्रोफेज का. जो भी प्रोफेज में आपने कहा था, आप सारा उसका ऑपोजिट बोलोगे तो ये आपका टीलोफेज आ जाएगी. फॉर एग्जांपल यू हैव टोल्ड इन दैट प्रोफेज दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस दे स्टार्ट डिसअपियरिंग. अब यहाँ पर उल्टा बोलना है आपने. यहाँ पर आपको क्या कहना है कि दैट ईच पोल in each pole chromosome is surrounded by new nuclear membrane is formed, Golgi body is formed, endoplasmic reticulum is formed, nucleolus is formed, है ना. ऑल दीज थिंग्स आर फॉर्म्ड एंड सेंट्रोसोम इज़ फॉर्म. क्योंकि अब सेंट्रोसोम का काम खत्म हो गया, तो सेंट्रोसोम पहले स्पिंडल फाइबर बना रहा था, अब तो कुछ नहीं बना रहा, तो ये वापस बनने लग जाते हैं सेंट्रोसोम फॉर्म. एंड स्पिंडल फाइबर की जरूरत नहीं है, तो ये जो ऐसे ऐसे बना रहे थे हम लोग क्रोमोसोम्स के लिए, तो ये भी क्या होने लग जाते हैं, दे ऑल्सो स्टार्ट डिसअपियरिंग. तो ये भी गायब हो जाते हैं. स्पिंडल फाइबर इज ऑल्सो डिसअपियरिंग एंड क्रोमोसोम्स अगेन बिकम न्यूक्लियर क्रोमेटिन. अब फिर से वही सारा काम, क्योंकि आपने पढ़ा था कि इसमें फिर से क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, ऐसे ऐसे पतले पतले से क्रोमेटिन के फॉर्म में ये इकट्ठे हो जाएंगे. तो ये सारे वापस हो गए, यानी कि पहले कंडेंस्ड हुए थे, अब इनको अब क्या कहोगे कि डीकंडेंस्ड हो गए, और यू कैन से हाइड्रेटेड कंडीशन में आ गए. एंड इन द डायग्राम ऑल्सो यू कैन सी, देखो यहाँ पर धीरे धीरे करके सेल्स जो हैं वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होने की तैयारी में हो रही है ना. और ये साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो गई है. दिस इज़ द कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्मेशन, और इसका मतलब होता है साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लग गया है. एंड बीच में देयर इज़ अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर. ये आपको दिख रहा है ना, डॉट डॉट मैंने बनाई है ऐसे 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 करके, दो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स. क्योंकि ये जो साइटोकाइनेसिस है, सपोज अब यहाँ नेक्स्ट डायग्राम में आप देखो, ये और कॉन्स्ट्रिक्शन थोड़ा सा गहरा हो गया, और कम्प्लीटली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक स्टेप और होगा, ये 2 ऐसे लोग डिवाइड हो गए, ख़त्म हो गए, 2 सेल हो गए ना. तो मैंने दोनों सेल्स ड्रॉ कर दी हैं. वन इज़ द एनिमल सेल एंड अनदर इज़ द प्लांट सेल. ये बोथ सेल्स आई हैव ड्रॉन हेयर टू शो यू द साइटोकाइनेसिस. क्योंकि साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में इट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड इन द एनिमल्स इट इज़ डिफरेंट टाइप. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द एनिमल सेल, एनिमल सेल्स में पहले फरो बनता है. फरो में से एक छोटा सा दरार सा बन जाता है, एक गैप सा, और वो किनारे किनारे की तरफ ऐसे ऐसे मूव करता है, और ये सेल 2 में कट जाती है, फट जाती है. एंड दिस इज़ द सेल प्लांट. सेल प्लांट में क्या होता है, इसमें बनता है सेल प्लेट फॉर्मेशन. यहाँ पर कुछ सब्सटेंस होते हैं, आके इकट्ठे हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लैग्मोप्लास्ट. वो आपको बाद में बताया जाएगा. और उसके बाद ये सेल प्लेट फॉर्मेशन से ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, सेल 1 और एक 2. तो ये आप आगे पढ़ेंगे, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट इन प्लांट सेल सेल प्लेट फॉर्मेशन अकर्स एंड इन एनिमल सेल सेल फरो. फरो मीन्स हल्की सी दरार सी बन जाती है, तो सेल फरो होता है साइटोकाइनेसिस में. और तब जो है हमारी जो सेल है वो डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में. दैट मीन्स इनमें जो सेल डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपका वो जो था एम क्या था, फ्रॉम 1 सेल टू फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स. तो इस तरीके से ये 2 सेल्स बन जाते हैं. तो ये तो हो गया आपका डिवीजन कंप्लीट. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस. सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का. तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है कि ये क्रोमोसोम नंबर्स को कांस्टेंट रखते हैं. ठीक है, आई हैव जस्ट रिटन हियर ऑल्सो.
आपको बुक्स में भी मिल जाएगा। तो दे कीप द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट एंड जेनेटिकल स्टेबिलिटी ये बनाए रखते हैं डॉटर सेल्स में, क्योंकि जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही क्रोमोसोम डॉटर्स में जा रहे हैं एग्जैक्टली सेम। तो मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली दे आर एग्जैक्टली रेप्लिका ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो इसलिए वो जेनेटिकली सेम रहते हैं, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती जीन्स की। एंड हेल्प करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। जाइगोट के भी मैंने आपको बताया था, जाइगोट बन जाता है, देन इट डिवाइड्स मिलियंस ऑफ सेल एंड देन इट फॉर्म्स द कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें भी हेल्प करता है। या प्लांट में कहीं कुछ टूट गया या आपको कहीं चोट लग गई तो आपको पता है रिपेयर रिजनरेशन ये सब माइटोसिस के थ्रू ही होता है। क्योंकि कोई भी बॉडी पार्ट, अगर जैसे मैंने लिजर्ड का एग्जांपल दिया था आपको, अगर उसकी टेल डिस्ट्रॉय हो गई तो अपने आप देखते हो वो बन जाती है। तो कैसे बन गई? बाय द डिवीजन ऑफ सेल ना। या आपको चोट लग जाती है तो आपका वुंड भी हील हो जाता है, कैसे? बाय द डिवीजन ऑफ सेल। तो इसी तरीके से, या फिर आपकी गट की म्यूकोसा है, गट की म्यूकोसा मीन्स आपका जो अंदर का सिस्टम है पूरा, इंटेस्टाइन का पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है। आप कितना कुछ खाते रहते हो, उल्टा सीधा भी, हार्ड भी, सॉफ्ट भी, और वो भी इरेज होती रहती है, मगर वो भी बन जाती है। कभी आप चीक्स में देखो कुछ भी, आप या टंग में देखो कुछ गर्म चाय पी लो या कुछ पी लो, है ना, तो और वो जल जाता है, और लेकिन आप देखते हो नेक्स्ट डे वो फिर से हील हो जाता है, वो फिर से ठीक हो जाता है। तो who perform these functions? Only by the process of mitosis, cell division. They helps in the asexual reproduction also, क्योंकि plants में budding होती है, stem cutting होती है। You have studied all these things in 10th standard। तो वो भी क्या होते हैं? सिंपल डिवीजन ऑफ सेल होता है। जहाँ भी कुछ चीज़ फिल करनी है सेल डिवीजन माइटोटिक होगा, फटाफट सेम सेल्स बनेंगी और वो चीज़ कवर हो जाएगी। ये सेल के साइज़ पे भी चेक रखती हैं कि उसको बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देती हैं, क्योंकि सेल को डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है। अब एक सेल हो, बहुत बड़ी सी सेल हो, तो वो उसको छोटा छोटा करना स्टार्ट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे स्टार्ट करके, है ना। तो वो छोटी रह जाती हैं सेल्स इसकी। और प्लांट की ग्रोथ में तो ऑब्वियसली हेल्प करती हैं, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि अगर प्लांट है कोई सा तो इसकी एपिकल भी एपेक्स होगी, और इधर अगर रूट्स हैं तो रूट्स की भी एक एपेक्स होगी। तो यहाँ पर भी सेल्स होती हैं, दे स्टार्ट डिवाइडिंग एंड सो दैट प्लांट ग्रोज इन द हाइट। इधर चाहे वो रूट से आप बोलो चाहे वो स्टेम से बोलो, वो उसकी हाइट भी इंक्रीज होती है। तो these are the few functions which I think important for you to understand what is the significance of mitosis। एंड आप इसको ध्यान से एक दो बार बच्चों सुनोगे ज़रूर से ये आप रिकॉर्डिंग, एंड देन रीड फ्रॉम योर NCERT बुक एटलीस्ट मिनिमम। आई टोल्ड यू दैट ट्वाइस। एक बार में पढ़ने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू रीड इट ट्वाइस योर NCERT बुक एंड वॉच दिस वीडियो 2 times और 3 times, जितना आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए। क्योंकि आफ्टर दिस टॉपिक आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट लेक्चर about the next cell division called meiosis, and which is similar, like बिल्कुल जैसे आपने ये पढ़ा ना, बिल्कुल वैसे ही होता है exactly, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कम्प्लीटली तो आपको उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इतना परेशान मत हो, क्योंकि ये न्यू चीज़ें हैं, आप पढ़ रहे हो जो, तो इट मे टेक्स टाइम, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी पर्सनली। ओके, थैंक यू।